Hello, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the topic Italian Renaissance, and the course title is History of Ideas, in which we discuss the Italian Renaissance. In the timeline, the key ideas and the key thinkers, those who have influence are Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Petrarch, who is the founder of humanism, and Martin Luther King, who would develop the political and the reformative movement, Protestantization of Christianity. So these are the key thinkers, and the ideas in that array is lead toward the humanism. So uh, here we have a look over the Renaissance timeline. So beginning of the time, the height of the Roman Empire, Italian Renaissance is about uh, from after the medieval age, after the medieval period, and it comes from the land place of the Europe, which is remarkably known as in Italy, Florence, the city. And you can say the timeline is 13th century till to 16th century. All these years have a great reformations. So Italian Renaissance. What Renaissance means? First, we have to be discussed what Renaissance means. Renaissance means the rebirth, reformation, and rebirth of what? Rebirth of old classical literature, including the Greek and the Roman. As we know that there is a too much influence of Greek literature and the Greek philosopher over the history of philosophy and history of ideas. So Renaissance is that time period which reinterpret all those ideas, reform the some sort of interpretation from the olden classical ideas. Those ideas they suppose that it is good for us. They adopted, and those they have say that we fall see the fall of the different Roman Empire, the Greek Empire, the leading one. Uh, they rejected. You can also say that Renaissance is the time of is the root seat of the Enlightenment movement. So from 13th century to 16th century, you can say that there is a lot of literature, culture, and learning program has to be produced, और एक इटालियन जो मूवमेंट है उसमें लिटरेचर का क्लासिकल लिटरेचर जो है बड़े से बड़ा लिटरेचर जो है वो ट्रांसलेट हुआ और वो उसको प्रोड्यूस किया गया इनटू डिफरेंट मीनिंग्स सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन और हम इसको रिमार्केबल भी बना सकते हैं इटालियन रेनेसां में इस रेनेसां लिटरेचर की वजह से जो है इन्वेंशंस इनोवेशंस का सिलसिला स्टार्ट हुआ as I told you from the 13th century till the 16th century. This movement is called literature, and the classical movement is called the Renaissance. You can see that this was the invention of the time period. The printing press is one of the leading one, so it make easy to रीड एंड राइट इस तरह से लिटरेचर जो है वो आपका प्रोड्यूस हुआ बहुत ज़्यादा इटालियन रेनेसां में और हमें अभी नज़र आएगा जैसे कि जब मुस्लिम गोल्डन पीरियड आता है तो वहाँ पे भी बाद में एक लिखने पढ़ने का सिलसिला जो है वो ट्रांसलेशन की मदद से चलता है इसी तरह से जब हम इटली रेनेसां की बात करते हैं इटालियन रेनेसां की बात करते हैं द फर्स्ट स्टेप दे हैव टेकन इज व्हाट टू डू द ट्रांसलेशन जो यूनानी ज़ुबान में थे सबको ट्रांसलेट किया और इस तरह से जो इटली है दैट्स व्हाई you have seen that whenever you find out some meaning so you will see that from the dictionary this word is derived from the Latin is in Italian one Italian ज़ुबान के अंदर and biblical word is mostly derived from the Latin word so this is a time where the different writers, poets, literature produce their texts in Italian. And what the themes are there, we have to be later discuss on.
So what are the background of Renaissance? There is a high and a little middle age after the medieval time period, and the medieval age where the Byzantine Empire and the Eastern Empire and the Western empires both are rise and then go toward the downfall. So there is a trade and commercial activities in the high middle age. There is a urbanization of growth in city. Commercial activities are at peak. इटली जो फ्लोरेंस शहर था वो समझा जाता था एक तिजारत का मरकज, बल्कि यू कैन से दैट कि जो बिजनेस है, कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, उसकी जो बिगिनिंग है, उसकी जो रूट्स है, वो हमें इटली से स्टार्टअप होती हुई नजर आती है। और इस तरह जब चर्च की पावर कम हुई, पेपेसी वगैरह सिस्टम, तो यहाँ से जो रेनेसां है, रेनेसां मूवमेंट है, उससे होल्ड ऑन कंट्रोल द सोसाइटी, द गवर्नमेंट, और न्यू फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट आर स्टार्टअप। rise of universities and expansion of the learning, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसे जो है वो मिड डार्क एज के बाद जो है मिडिल एज में डेवलप हुए, और उसके बाद ये सारा बैकग्राउंड है रेनेसां का। और रेनेसां में हमने अभी जैसे कहा कि लैटिन लैंग्वेज जो है वो सिविलाइजेशन थी, जो कल्चर प्रमोट हो रहा था रोम में, वो लैटिन सिटी में था, और जो है वो डोमिनेटिंग वन बन गया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं रेनेसां की एरा के अंदर, कि रेनेसां के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट अगर जो है वो अरोज हुई हैं, तो इसको हम एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं। क्यों हम कह रहे हैं एज ऑफ एक्सप्लोरेशन? क्योंकि यूरोप एक्सपेंड होता गया, यूरोपियन एक्सपेंड होना शुरू हो गए ट्रेड के ज़रिए, कॉमर्स के ज़रिए, और अपने इस लिटरेचर की ट्रांसलेशन को एक्सपेंड करके, और इंटेलेक्चुअली वो मूवमेंट भी इन्हेंस होती है। जैसे कि प्रोटेस्टेंट जो थे, जिन्होंने रिफॉर्मेशंस उठाई, जिसमें एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट दिया गया, और जो एक रिलीजियस वॉर थी, क्रूसेड वॉर थी, वो कम हुई, रिलीजियस टॉलरेंस आई, इन सब लिटरेचर राइटिंग से प्रोड्यूस हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रेवोल्यूशन हमें नज़र आता है, जो कि मॉडर्निटी और एनलाइटनमेंट की बेसिस बनी, जिसमें हमें कोपरनिकस, फ्रांसिस बेकन और इस जैसे गैलीलियो जैसे नाम हमें नज़र आएंगे। तो जो रेनेसां पीरियड है वो बेसिकली वो एक बीज बो के गया, जिसकी मदद से फिर आगे जाके एनलाइटनमेंट के लिए राह जो है वो आसान हुई। अगर हम रेनेसां की फ़लसफ़े पे बात करें कि रेनेसां की फ़िलासफ़ी क्या है, बेसिकली रेनेसां में जो फ़िलासफ़ी हम बात करेंगे, जो यूनान का फ़लसफ़ा था, मग़रिब में जाता है, और जो मुस्लिम जो फ़िलासफ़र्स थे, उन्होंने भी यही तरीका आज़माया कि इन्होंने यूनानी फ़लसफ़े को जो ट्रांसलेट किया अरेबिक में, पर्शिया में, उसको दोबारा से इटालियन लोगों ने यूरोप में जब उसको लेके गए, तो उसको पढ़ने के लिए उन्होंने रिकवर की, वो सारा इंटेलेक्चुअल डाटा रिकवर किया, और ट्रांसलेशंस के ज़रिए जो है वो अपने उन आइडियाज़ को आगे बढ़ाया। तो पीपल हैड लॉस्ट देयर फेथ इन चर्च एंड गोइंग टुवर्ड द ह्यूमनिज्म। अब ये जो ह्यूमनिज्म है, ये आइडिया क्या था कि ह्यूमन हैव कैपेबिलिटी, ह्यूमन हैव कैपेसिटी, they will understand by their own. No one is dictating. He is an authority. He used their mind, he used their rationality to understand the thing. So that was the main idea. और ऐसे ही इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट हुआ कि भाई वी आर द ह्यूमन बींग्स, वी आर द यूनिक इंडिविजुअल, और ये एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गई, यानी मैन सेंटर्ड हो गई, कि वी आर द ह्यूमन फर्स्ट एंड द रेस्ट इज सेकेंडरी। वी आर द ह्यूमन फर्स्ट एंड द रेस्ट। So humanism is the key idea of Renaissance. You can say that. यहाँ पे religious tolerance की बात की गई, ये जो जितनी क्रूसाइड्स और religious वॉर हुई, होली वॉर्स हुई, तो ये कहा गया कि ह्यूमन पहले हैं, बाकी जो है वो उसके ऊपर जो लेबल होते हैं नेशनल के, रिलीजन्स के, फंडामेंटल के, वो अलग हैं। तो ह्यूमनिज्म अ सिस्टम ऑफ थॉट अटैचिंग प्राइम इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन रादर देन द सुपर नेचुरल मैटर। वी आर द ह्यूमन फर्स्ट, ये जो नारा है यही जाके ह्यूमनिज्म और फिर ह्यूमन राइट्स मॉडर्न दौर में बनता है। इटालियन रेनेसां जो है, ये इसकी अगर हम रूट बात करें तो ये नॉर्दर्न इटली और रोम के शहर से इसका आगाज़ होता है, जब भी वहाँ पे हमें इटालियन आर्टिस्ट नज़र आते हैं, पेंटर नज़र आते हैं, राइटर्स नज़र आते हैं, लिटरेचर नोवेल जिसके अंदर हमें एक ह्यूमैनिटी का मैसेज हमें ज़्यादा नज़र आता है।
और एक दुनिया इमर्ज होती है क्योंकि वो फेड अप हो चुकी है पिछली वॉर के साथ और वो क्रूसाइड्स के साथ। और तो यहाँ पे जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटी की तरफ बात करिए, अब वो ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, ये देखें ये इटालियन रेनेसां के, ये मिलान, फ्लोरेंस, जेनोवा, वेनिस, ये दीज आर द सिटी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेनेसां है ये कॉमर्स एंड ट्रेड का भी लीडिंग सेंटर रहा। इटली, यूरोप जो है, यहाँ से जो है वो तरक्की करता है यूरोपियन सिटी। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज वेयर दीज ऑल आइडियाज आर पेनिट्रेट। और मिलान जो है मशहूर है, आपको पता है कि वो डिफरेंट रिचेस्ट सिटीज़ के अंदर में से आता है एक। और फ्लोरेंस में एक मेडिसी फैमिली है जो पेट्रोन रही है, आर्ट की, आर्ट लवर थे। और आज भी आपने देखा होगा यूरोप में जो इटली वगैरह है वहाँ पे आर्टिस्टिक वर्क को बहुत ज़्यादा जो है वो सराहा जाता है। और यूरोप के अंदर जो है ये एक सेंट्रल हब था मनी, बैंकिंग एंड बिजनेस की जो है कंडक्ट करने। तो ये इटालियन रेनेसां की वो सिटीज़ हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इस आइडियाज़ को पेनिट्रेट करने के लिए, ह्यूमनिज्म के लिए। जैसे कि आप ये मैप में देख सकते हैं, फ्लोरेंस, इटली, रोम सबसे सेंट्रल प्लेस है। फिर वेटिकन सिटी है जो कि एक क्रिस्टियनिटी का एक सेंट्रल प्लेस था, आप यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे। और जो है यहाँ पे मिलान आपको नज़र आता है। तो ये जो सिटी हैं ये बड़े रिच थे ट्रेडिंग के अंदर, जनवा, फ्लोरेंस और जो है नॉर्दर्न यूरोप जिसे कहते हैं। अब तो यहाँ पे बड़े वेल्थी मर्चेंट थे। और ये नॉर्दर्न रेनेसां की बात करें तो नॉर्दर्न रेनेसां जो है ये इटली में 1494 तक ये पेनिट्रेट हुआ, जिसके अंदर आपको इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जर्मेनिक रीजन जिसको आप होली रोमन एम्पायर कहते हैं, वो सारे सिटीज़ इसमें मौजूद हैं। आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर ऑटोमन एम्पायर है और उसके इधर लेफ्ट में आप देखेंगे नॉर्दर्न एरियाज में। तो ये जो सिटीज़ हैं सारे, ये रिपब्लिक ऑफ जेनेवा, रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस, राइट, ये सब जो है रोम, ये सब जो है रेनेसां के इन आइडियाज़ का मरकज़ रहे हैं। तो इस तरह से इसका इन्फ्लुएंस क्या रहा सोसाइटी में, तो ये बहुत आपने अहम पॉइंट्स हैं यहाँ पे समझने के लिए। और एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी मैं आपको बताता चलूँ। 13वीं सेंचुरी में एक ब्लैक डेथ, एक आप समझें वहाँ पे एक आउटब्रेक हुआ जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो यूरोप के अंदर कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है पॉपुलेशन का वो इस बीमारी से जो है वो का शिकार हुआ। और इससे भूख अफलास रही, एक जंगी कैफियत रही। और पॉपुलेशन को बहुत नुकसान हुआ जिसमें फूड का मसला रहा, फूड प्राइसेस के इश्यूज रहे। और यूरोप में फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हुए। और एक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो रही सोसाइटी में। और अगर हम शहर में की बात करेंगे तो हमें इन शहरों में किंगडम नज़र आ रही है कहीं कहीं, क्योंकि मोनार्च सिस्टम अभी भी है, क्योंकि फ्यूडल लॉट से चलते चलते ये जो मिडेवल एज है वहाँ पे आपको चर्च का एक दौर आ रहा है। तो होली रोमन एम्पायर जिसमें किंग ऑफ को अहमियत हुआ करती थी। तो ये जो शहर हैं उनका नक्शा वक्त वक्त के साथ साथ बदलता चला जा रहा है। तो अब सिचुएशन ऐसी थी सोसाइटी की, उसमें नोबल्स भी थे, पीसेंट भी थे, लैंडलॉर्ड भी था। तो वहाँ दो लोग और आर्टिसियन और मर्चेंट का भी एक हिरार्की डेवलप हो गया। अच्छा जी, रेनेसां ने इकोनॉमिकली इस तरह से ग्रो किया। और मैंने जैसे आपको कहा रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है जिसके मायने रीबर्थ होते हैं। और रीबर्थ मतलब किस तरह का रीबर्थ है? रीबर्थ ऑफ ओल्ड एंड क्लासिकल आइडियाज़। ये जो इंटेलेक्चुअल्स थे यूनान के, जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये बड़े इन्फ्लुएंसिंग लोग थे। वो दोबारा से उनके आइडियाज़ जो है वो ट्रांसलेट होना शुरू हुए। ग्रीक स्कॉलर्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। और एक वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ के अंदर जो इटालियन से, उन्होंने फिर अरेबिक ट्रांसलेशन से भी बहुत सारी चीज़ों को सीखा। और ये कहा जाता है कि लाइब्रेरीज़ को जला दिया गया था। और तो जो कुछ हमें नज़र आता है अलेक्जेंड्रिया में या बगदाद में, तो वहाँ से डाटा कलेक्ट किया गया और उस टेक्स्ट को दोबारा से रिप्रोड्यूस किया गया। तो ये जो है इस तरह से फ़िलासफ़ी, आर्ट, साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो में नज़र आता है। और इन सब का की कॉन्सेप्ट क्या था, उनकी जो अप्रोच थी इस लिटरेचर को प्रोड्यूस करने की, वो क्या थी? वो थी ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिज़्म। तो रेनेसां के कॉजेज़ क्या हैं?
सबसे पहला कॉस्ट अभी आपके सामने हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं कि जो ट्रेड तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी इस रीजन के अंदर। दूसरी बात, जो छोटे-छोटे शहर थे वो शहर बढ़ते चले गए, वेल्दी सिटी बनते चले गए। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो जो एंशिएंट जो ग्रीक्स था उसका उसमें जो लर्निंग का इंटरेस्ट इनका बहुत ज़्यादा था। तो रोम में रोमन एम्पायर्स के एरा में जो हेलेनिस्टिक फ़िलासफ़ी है या फिर ग्रीक क्लासिकल ग्रीक फ़िलासफ़ी है, उन आइडियाज़ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इस दौर में। और पावरफुल मर्चेंट रहे हैं, उस तरह से आर्टिस्टिक वर्क को अहमियत मिली है यहाँ पे। और साइंटिफिक नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस दौर का कि साइंटिफिक अप्रोच आई। इस तरह की जो फेथ जो ज़्यादा डोमिनेट करता है हमें मिडिवल एज में नज़र आता है, तो वो अब थोड़ा सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बेस हो गया। जैसे गैलीलियो का टेलीस्कोप बनाना, फिर वो फॉलिंग बॉडीज़ का कॉन्सेप्ट, कोपरनिकस का ये बताना कि द सन रोटेट अराउंड द सन। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे, जो साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज प्रमोट हुई है रेनेसां के अंदर। और डिज़ायर टू ब्यूटीफाई, यानी आप कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्ट है, स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा एक ब्यूटीफाई करने की तरफ जो है वो रुझान रहा है। तो ये रेनेसां के वो आइडियाज़ हैं जो हमें नज़र आते हैं। अच्छा, फिलोसफिकली रेनेसां में 3 हमें आइडियाज़ बहुत की नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 ह्यूमैनिज़्म, जो हमने आपको कहा है कि यू कैन से दैट इटालियन रेनेसां इज व्हाट इट इज अ ह्यूमनिज्म, द आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म। और ह्यूमनिज्म का आइडिया क्या है? वी आर द ह्यूमन फर्स्ट, यानी वी शुड सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द एनी लेवल। ये बड़ा सेक्युलर और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था ह्यूमन का कि इंसान को उसकी असल मेयार अक्ल है और वो खुद से चीज़ों को समझ सकता है और वो तरक्की कर सकता है। तो इस तरह से हमें प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट नज़र आया ह्यूमैनिटी का। और ह्यूमन ने अपनी ग्रोथ की बात की कि अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज किया जाए। और इस तरह से साइंटिफिक, इंटेलेक्चुअल, मेंटल ग्रोथ की बात हमें बहुत ज़्यादा नज़र आए और इंसानों ने फिर लिखने पढ़ने की तरफ जोर जोरा ज़्यादा किया। और हमें आगे जाके जब हम एनलाइटनमेंट की बात करेंगे या मॉडर्निटी की बात करेंगे तो हमें वहाँ पे फिर इंसान, वो इंसान नज़र आएगा जो रेनेसां ने प्रोजेक्ट किया था कि एक इंसान जिसके पास एक सब्जेक्टिव नॉलेज है। अच्छा, सेक्युलरिज्म से मुराद यहाँ पे क्या है? यहाँ सेक्युलरिज्म से मुराद ये है कि स्टेट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन, रिलीजियस मैटर इज अ प्राइवेट वन। और जो स्टेट को रूल करने के लिए एक अलग सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किया जाए। और बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज किया गया नॉन रिलीजियस वैल्यूज़ के ऊपर, क्योंकि पहले रिलीजन डोमिनेशन बहुत ज़्यादा रहा है मिडिवल एज के अंदर। तो ये सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट हमें नज़र आता है ह्यूमैनिटी के अंदर, जिसने ये नारा लगाया कि वी आर द ह्यूमन फर्स्ट एंड द रेस्ट आर द सेकेंडरी। तो रेस्ट में ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट एक रिलीजियस लेबलिंग थी। अच्छा, इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, होल्ड विद सम यूनिक क्वालिटीज एंड एबिलिटी, सो एवरीवन इज ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्फ। ये एक आइडिया रहा। तो आपको इस ज़माने की एक बड़ी मज़ेदार से और हम आपको बताते हैं, इसमें लियोनार्डो डी विंची आपको नज़र आता है, मोनालिसा की पेंटिंग जिसने लास्ट सफर भी बनाया। तो ये भी इसी दौर के एक इन्फ्लुएंसिंग पर्सन है लियोनार्डो डी विंची। आर्टिस्ट भी हैं तो साइंटिस्ट भी हैं, इन्वेंटर भी हैं। ठीक है, फ्लाइंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट किया। अच्छा जी, अब हम फाउंडर की बात कर रहे हैं जिसने ये जो सबसे पहले अपनी राइटिंग से ह्यूमनिज्म को प्रमोट किया, वो है पेट्रार्च। 1304 डेट ऑफ बर्थ है और 1374 इनकी डेट ऑफ डेथ है। और क्या कहते हैं ये देखें, आप पढ़ें इनकी राइटिंग से आपको अंदाजा होगा कि 5 एनिमीज ऑफ पीस इनहेबिट विद अस, अवेयरनेस यानी लालच है, एम्बिशन, एनवे, एंगर, प्राइड। ये जो गुस्सा, जलन और लालच, हिर्स, ये इंसान को तबाह कर देते हैं और इंसान के अंदर का जो पीस है वो ख़त्म कर देते हैं। इसी तरीके से एक और बड़ी मज़ेदार इसने ह्यूमैनिटी को लेके बात की कि लव इज़ द क्राउनिंग ग्रेस ऑफ द ह्यूमैनिटी, the holiest right of the soul, the golden link which binds us to duty and the truth, the redeeming principle that chiefly reconciles the hurt to life and is prophetic of eternal good। इस तरह से वो लव फॉर ह्यूमैनिटी की बात करते हैं पेट्रार्च। और जो है ये इटालियन स्कॉलर, उसने अपनी पोएट में लिखा, सोनेट के अंदर ये अपने इन बातों का ख्याल रखा। उसकी जो अप्रोच थी वो ह्यूमनिस्टिक थी। दैट्स व्हाई वी से ही विल कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। और पेट्रार्च ने अपनी राइटिंग में जो फोकस किया वो ह्यूमनिज्म जो सबसे बड़ा बिगेस्ट आइडिया था उसकी नज़र में, उसने इसको इनकॉर्पोरेट किया।
और वो यही बताता है किस बारे में कि लव फॉर ह्यूमैनिटी और इंडिविजुअलिज्म और साइंटिफिक नॉलेज को वो प्रमोट करता है। तो पेट्रार्ची ये द सोनेट ट्रायम्फ एंड द अदर पोएम्स हैं यहाँ पे these in that idea. Humanism is a great idea in from the writing of Petrarch. So ह्यूमनिज्म के बारे में अगर हम क्वेश्चन रेज करें तो हाउ डिड क्लासिकल नॉलेज ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन फॉस्टर ह्यूमन टैलेंट रेनेसां। तो क्या थे वो आइडियाज सेलिब्रेटिंग द इंडिविजुअल। ह्यूमनिज्म क्या कहता है, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है। ह्यूमनिज्म जो है वो ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को दोबारा से स्टडी करने की बात करते हैं। ह्यूमनिज्म जो है वो थोड़ा सा वेल्थी पैट्रॉन जो है उनका इन्फ्लुएंस एंड इंटरेस्ट हमें ज़्यादा नज़र आता है। और ये तीन आइडियाज़ जो हमने आपके सामने रखे हैं ह्यूमनिज्म के, उनका फोकस क्या था, इंडिविजुअल ग्रोथ पे, इंसान अपने आप को इम्प्रूव करे कैसे, लेकिन स्टडी के जरिए वो नॉलेज हासिल करे, वो रैशनल हो, और इस तरह से लिखने पढ़ने का रुझान जो है वो तेज़ी से बढ़ता चला गया। सेकंड, कमिटमेंट टू द पब्लिक सर्विस। ठीक है, वो सर्व करे, हुकूमत को सर्व करे, और वो लोगों को काम करे साइंस के ज़रिए, इन्वेंशन के ज़रिए, और इस तरह लोगों के अंदर एक खास स्किल सेट पैदा होना चाहिए और एक नॉलेज तो उनमें डेवलप होनी चाहिए। ये जो ह्यूमनिस्ट फोकस था, जो उन्होंने ग्रीक एंड रोमन्स आइडियाज़ को अडॉप्ट करके जो है इटली में फैलाया। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, बड़े बड़े शहरों में इटली के एक सोशल ग्रुप बनता है, लर्निंग ग्रुप बनते हैं, और उसमें क्लासिकल ग्रीक रोमन लिटरेचर प्रोड्यूस होता है, पोइट्री होती है, नेचुरल साइंसेस हमें नज़र आती हैं। और जो यहाँ पे जो फ़लसफ़ा था वो मैन इन द सोसाइटी था, मैन टू मैन, मैन इन ए सोसाइटी, एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ मैन विद अदर, इसको हम एंथ्रोपोसेंट्रिक कहते हैं। यानी मैन सेंटर्ड फिलॉसफी हमें यहाँ पे नज़र आती है, जिसमें एक्शन ओरिएंटेड होती है, और वो फिलॉसफी जो सोशली यूजफुल हो। तो रेनेसां ह्यूमनिज्म को हम देखें तो दो की आइडियाज़ हमें नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो मिडिवल स्कूल के अंदर जो फेथ का डोमिनेशन था उसको रिजेक्ट करते हैं और एम्फेसाइज करते हैं पर्सनल ट्रेनिंग के ऊपर, थियोलॉजी को छोड़ के, और लॉ में, मेडिसिन में इस तरह एक लिबरल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब ये नहीं है एक ऐसी एजुकेशन जो आपके माइंड को आज़ाद करे, लिबरेट करे, और आप जो है खुद से अपनी नॉलेज की बेसिस के ऊपर मोरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, सोशल वैल्यूज को समझ सकें। सेकेंडली, ह्यूमनिज्म किस पे ज़्यादा एम्फिसाइज करता है, लैटिन लैंग्वेज के ऊपर हमें ज़्यादा, हमने कहा ना कि आज भी आप देखेंगे कि दिस वर्ड इज़ डायरेक्ट फ्रॉम द लैटिन, तो आप समझ आता है आपको कि इतना लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, जो क्लासिकल टेक्स्ट है वो दोबारा से रीइन्वेंट हुआ, तो हमें यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस नज़र आता है ह्यूमनिज्म का। और ख़ास करके जो सॉक्रेटिक प्लेटोनिक आइडियाज़ हैं, यानी प्लेटो के, वो आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस हमें बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है। और इस तरह के जो अर्ली स्कॉलर्स फिर हमें मॉडर्न स्कूल, मॉडर्निटी के अंदर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के अंदर उस वो हमें इंस्टीट्यूशनल ग्रो करते हुए नज़र आते हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स जिनके ऊपर रेनेसां का असर है, रेनेसां के आइडियाज़ का असर रहा है। तो हाउ डिड द ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी स्प्रेड आउटसाइड द फ्लोरेंस, हम इसको ज़रा देखते हैं। तो हमने अभी आपको बताया इन शहरों, बड़े बड़े शहरों के ज़रिए, ट्रेड के ज़रिए ह्यूमैनिटी के आइडियाज़ फैले। और जब प्रिंट प्रेस बना 1438 में, तो इससे भी आइडियाज़ तेज़ी के साथ फैलते चले गए। और दूसरी बात, जो मोनार्क सिस्टम था, जो रूलर थे, वो सपोर्ट करते थे उस ज़माने के लिटरेचर राइटर जो कि ह्यूमनिस्ट थे। तो इसकी वजह से भी, जैसे कि मेडिसी फैमिली के अंदर निकोलो मैकियावेली का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, पेट्रार्च का जो है एक मोनार्क के साथ। तो इस तरह से ये आइडियाज़ बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैलते चले गए। तो ह्यूमनिज्म ने रिवाइव किया, हमने आपको जैसे बताया, लैटिन, ग्रीक, एरेको, और जो है उनका मकसद क्या था कि ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाए। इस तरह हिस्ट्री, लिटरेचर, फ़िलासफ़ी, ये सारे आइडियाज़ हमें दोबारा से नज़र आते हैं। और आपके सामने ये बड़े बड़े हिस्टोरियंस के नाम नज़र आ रहे हैं, डांटे, लिगुआनी, पेट्रार्च, फ्रांसिस्को पेट्रार्च, ये सारे राइटर्स हमें नज़र आते हैं जो बहुत सारे एरियाज़ में काम करते हैं, लॉ, मेडिसिन, हिस्ट्री। तो इसी तरह इटालियन रेनेसां में एक और बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो जिसको हम रिलीजियस रिफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें मार्टिन लूथर किंग है, जिसने कॉन्सेप्ट दिया कि हम रिलीजियस वैल्यू को भी अपने
रैशनैलिटी और रैशनल नॉलेज के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी ही मस्ट डू हिज ओन बिलीविंग एंड हिज ओन डाइंग, गॉड डज नॉट नीड योर गुड वर्क बट योर नेबर डज। तो इस तरह ये भी अगर लाइन देखें तो ये ह्यूमैनिटी की तरफ बात करते हुए नजर आते हैं। और फिर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन यही थे कि इंसान खुद से भी स्पिरिचुअलिटी को काफी को हासिल कर सकता है। तो मार्टिन ल्यूथर किंग जो है उसने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लेकर आए और रिलीजियस रिफॉर्म लेकर आए, जिसका मकसद ये था, पहले सबसे पहला शख्स है जिसने बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, और इस बात को ये लगता है कि वो ट्रांसलेशंस के ज़रिए भी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो मार्टिन लूथर किंग के जो आइडियाज़ थे वो 15वीं सेंचुरी से कैथोलिक रिफॉर्मेशंस के नाम से पहले उसने ये पॉम्फलेट के ज़रिए और डिफरेंट इनोवेशंस के ज़रिए आइडियाज़ फैलते हैं। और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो थी वो मार्टिन लूथर किंग की इन बातों पे बेस करती है। सबसे पहली बात तो ये कि फेथ जो है अलोन, ये उसके फंडामेंटल्स हैं कि neither good work nor the receiving of sacrament justify the believer in the eyes of God and wins redemption। तो ये रिडीम करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप जो है वो बल्कि आप प्रैक्टिस करें, आप जो है वो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करेंगे, तो आपको जो है वो आपकी गुड डीड्स आपके लिए फायदेमंद होंगे। द बाइबल इज नॉट ओनली बाइबल इज ओनली द सोर्स ऑफ रिलीजियस अथॉरिटी, और हमें जो है वो वर्ड ऑफ गॉड और क्रिश्चियंस मस्ट रिजेक्ट ऑल अदर सपोज चैनल ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन। तो ये जो कमेंट्री ट्रेडिशन, ये होप की जो बातें हैं उसमें ना आए, बल्कि क्या करें, आप उसको प्राइवेटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे भी समझ सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से थॉमस हॉब्स इसी दौर के अंदर ये साइंटिफिक, जैसे वो रिलीजियस रिफॉर्मेशन का सबब बना, तो थॉमस हॉब्स साइंटिफिक रेवोल्यूशन का की वजह बना, जो जिसकी बड़ा नारा है कि मैन इज मशीन। 15-16 सेंचुरी में उसने जो मेटाफिजिकल डिबेट रखी है मैन गॉड एंड यूनिवर्स की, जो कम्प्लीटली जस्ट लाइक अ मशीन थी, कि द होल यूनिवर्स इज लाइक अ कॉप्स। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैन इज लाइक अ मशीन, जितनी भी क्रिएचर्स हैं वो एक बिल्कुल फ्लैश एंड ब्लड की तरह से हैं, और नथिंग विदाउट सब्सटेंस, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखता था, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रखता था। वो कहता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन द फिजिकल फॉर्म। जैसे लॉ ऑफ मोशन के ऊपर वो रिलाई करता है, कहता है कि एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो एवरीथिंग हैज कॉज एंड एवरी कॉज हैज इफेक्ट, so there is no superstitious thing, everything is based on completely some scientific form of pattern. So law of life is like a motion of limb, life is like a motion of limb. Senses work as mechanical. The whole system, if you see your digestive system, if you see your neuron nervous system, if you see the your heart system, so you can see that there is some mechanical. ये जो हमारी veins हैं, just like a machine ही है। ये जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम है वो फायर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ, ये बिल्कुल लाइक अ मशीन है। वो कहता है हार्ट इज लाइक अ बैटरी, ये जो नर्व्स हैं हमारी बिल्कुल स्ट्रिंग्स हैं, ये जो जॉइंट्स हैं जस्ट लाइक अ व्हील हैं। तो वी आर लाइक अ मशीन, और एक फिक्स स्ट्रक्चर है। मशीन किसे कहते हैं, जिसका एक फिक्स मैकेनिज्म होता है और वो उसको फॉलो कर रही होती है कि ऑन एंड ऑफ, अगर ये एक्शन है तो ये इसका कॉज होगा, ये कॉज है तो इसका ये इफेक्ट होगा। So humans are bound by the law of nature, and law of nature is constant, and law of nature is fixed. तो ये जो आइडियाज़ थे ये बड़े साइंटिफिक रहे, इसका आइडियाज़ साइंस के लिए बड़ी राह आसान करता है, और आगे फिर साइंटिफिक नॉलेज को लेना, हासिल करना आसान होता चला जाता है। और जो है वो थॉमस हॉब्स का एक और बड़ा पॉपुलर इन्फ्लुएंस है, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो यही बात करता है कि इंसान जो है वो बाय नेचर तो सेल्फिश है, क्रूल है, ग्रीडी है, लालची है, वो सिर्फ अपना मफाद और फ़ायदा देखता है। तो वो अपनी बुक लेविथिन में कहता है कि इंसान फिर क्या करे, वो गिव अप करे अपने राइट को, और स्टेट जो है वो उन सबको एक शख्स यानी एक लीडर, एक डोमिनेंट पर्सन इन सबको उनके राइट्स दे, और ये सब अपने कुछ राइट फ्रीडम गिव अप करें। वरना हर कोई अगर अपने हाथ में रखेगा आज़ादी को, फ्रीडम को, तो वो अपना ही बेनिफिट देखेगा, वो अपना ही फ़ायदा देखेगा।
तो यूँ इस तरह से इन सब के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होगा जिसको वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम देता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया कि गवर्नमेंट वर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम देयर ओन सेल्फिशनेस। अगर वो ना हो तो फिर सब अपना अपना मफाद देख के चले जाएं। तो ये जो आइडियाज़ था आज के ज़माने में तो हमें ये कुछ नई बात नहीं लगती, लेकिन 16-17 सेंचुरी में जब ये बात की गई तो उस ज़माने में इस बात को एक नए अंदाज से देखा गया और इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। इसी तरह हम मैकियावेली की बात करते हैं, जो कि अपनी बुक के लिए so we have a quick overview of that topic and what we get in the whole lecture. Renaissance is known as humanism, and the term humanism was introduced in 18th century, and the idea was lie between the 13th to 16th century. Humanista, which means humanism, human-centered ideas. So, what humanism? Humanism philosophy जो है वो dignify करती है predominate ideas यहाँ पर human interest हैं, ultimate faith human kind के ऊपर है। ये बिलीफ रखते हैं कि इंसान के अंदर पोटेंशियल है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है रीजंस के ज़रिए और साइंस के ज़रिए। तो ह्यूमनिज़्म की अगर हम तीन अप्रोचेस को देखें तो पहली अप्रोच तो ये है कि ह्यूमनिज़्म इंसान को अक्ल की बुनियाद पे तरजीह देता है और वो कहता है कि इंसान अपनी डिग्निटी हासिल कर सकता है नॉलेज गेन करके और वो मोटिवेट हो सकता है अपनी साइंटिफिक नॉलेज से। दूसरी डेफिनेशन अगर हम ह्यूमनिज्म की देखें तो वो ये है कि मोरल जो हमारी फ़िलासफ़ी है, अखलाकियात के जो पहलू हैं, उसके लिए इंसान जो है वो उसको वैल्यू दे और ह्यूमन इज़ फर्स्ट, और हम ये रिलीजियस टॉलरेंस भी रखें और हम सब इंसान हैं और हम सब यूनिक हैं और हम सब अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरी अप्रोच जो थी ह्यूमनिज्म की ये है जो स्टडी में हमें नज़र आती है, हिस्ट्री में, फ़िलासफ़ी में, जिसमें ह्यूमन वैल्यूज़ को कंसर्न किया गया। चाँद तारे सैयारे 9 के बजाय 11 प्लैनेट हो जाएँ, मज़ीद साइंस में और इज़ाफ़ा हो जाए तो हम ये देखेंगे कि इंसानी ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा। क्या इससे ह्यूमन लाइफ इम्प्रूव हो रही है, तो देन वी अडॉप्टेड। तो जो थर्ड डेफिनेशन है वो ये कहती है कि फ़िलासफ़ी जो है वो प्रैक्टिकल हो ह्यूमन लाइफ के लिए। और ये उस ज़माने के हमें इन्फ्लुएंसिंग राइटर्स नज़र आते हैं और ह्यूमनिज़्म के अंदर ये हमें नज़र आता है कि फ़िलासफ़ी एम्फसाइज़ करती है पुराने ग्रीक नॉलेज के ऊपर, ह्यूमन फीलिंग को अहमियत दी गई है। सेक्युलर कॉन्सेप्ट रहा कि रिलीजन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट मैटर्स एंड फ्रॉम द प्राइवेट मैटर्स, रिलीजन इन द प्राइवेट मैटर। और ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है और हमें मेडिसिन में, लॉ में बहुत डेवलपमेंट नज़र आती है, आर्टिस्टिक वर्क नज़र आता है इस दौर के अंदर। और यहाँ जो सबसे बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन रहा है, व्हाट लाइफ इज, व्हाट ह्यूमन लाइफ इज, एंड हाउ शुड वी इम्प्रूव आवर लाइफ, एंड हाउ शुड वी लिव आवर लाइफ। ये जो सवाल था कि इंसान अपने आप को कैसे इम्प्रूव करे, बेहतर करे, ये ह्यूमनिज्म के जो हैं की आइडियाज़ रहे हैं कि फ़िलासफ़ी सेंटर्ड रही है, इंडिविजुअल डिग्निटी की बात की गई है और जो है इंसान जो है उसका पोटेंशियल रीज़न के ज़रिए वो अचीव कर सकता है। तो उसमें हमें नज़र आता है पेट्रियार्च जो एक पोइट है, फ़िलासफ़र है, फादर ऑफ ह्यूमनिज़्म है और जो है वो डार्कनेस से निकल के जब बाहर आते हैं वो रेनेसां में, रिफॉर्मेशन में, तो उसका बहुत बड़ा हाथ है राइटिंग के ज़रिए। लियोनार्डो ब्रूनी, ये ब्रूनी जो है ये भी एक हिस्टोरियन है और ये ह्यूमनिस्ट था और इसने भी सेक्युलर रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री मेंटेन किया जिसमें रिलीजन को अलग किया मिडिल एज के बाद। इसी तरह निकोलो मैकियावेली ये इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बुक द प्रिंस के लिए, और उसने एक पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन जो है वो लिखा। तो अगर हम इसको सम अप करें तो ह्यूमनिज्म के फीचर्स क्या हैं? रिलीजियस फ्रीडम हमें देता है, हमारी लाइफ को एडजस्ट करता है और ह्यूमन लाइफ को वैल्यू करता है, मैन सेंटर्ड डिस्कशन होते हैं और मैक्सिमाइज लर्निंग को प्रमोट किया जाता है, इंसान की डिग्निटी को पहली अहमियत दी जाती है, जितनी भी सुपरस्टिशियस बिलीफ हैं उसको रिजेक्ट किया जाता है और टू मच रिलाई ऑन द साइंस एंड द रीज़न। एजुकेशन चेंज हो गई, एजुकेशन ने इंसानों को इम्प्रूव करा, बेहतर किया और ये ग्रेटर गुड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी उस आइडियाज़ को अपनाया जाएगा। वी आर बॉर्न एज ह्यूमन, वी आर बॉर्न एज ह्यूमन। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमैनिटी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, यही अखलाकियत का पहलू है। तो ये जो हिस्ट्री अगर हम कहेंगे ह्यूमनिज़्म की तो ये हमें पिछले
मिडिवल एज में और क्लासिकल एरे में भी इस तरह के आइडियाज़ हमें नज़र आते हैं, जिसमें नॉलेज वैल्यूज जो है वो इंसानियत को तरजीह ज़्यादा दी जाती है। और फिर रेनेसां में पेट्रार्च ने भी उन्हीं राइटिंग को जो है वो अपना तवज्जो का मरकज़ बनाया। उसमें फिर थॉमस मोर आगे चल के और एरस्मस है जो थियोलॉजियन है, वो भी हमें ह्यूमैनिटी की बात करते हुए नज़र आते हैं। तो रेनेसां ह्यूमनिज़्म का असर लिबरल आर्ट में भी नज़र आता है हमें। और ये आज के ज़माने का मॉडर्न आर्ट एक एग्जिस्टलिज्म इज़ ह्यूमनिज़्म के इंसान की लाइफ जो है वो उसके जो एक्शंस हैं वो सब्जेक्टिविटी, मैन एग्जिस्ट फर्स्ट before anything else. Man is responsible for what he is, for himself, and for the other. So man choose himself and act according to his choices. So our responsibility is greater to concern to all mankind. Man is responsible for his own passion. Man is the future of human, and you are free to choose and invent yourself. Man is nothing more than the sum of choices that hit man. This is the all the concept of existentialism. Those believe that man is exists first. So don't once you label me, it means you negate me. तो जो ह्यूमनिज्म है, जो इंसानियत है, वो एग्जिस्टलिज्म का ही मौजू रहा है। और आज के ज़माने में 20th सेंचुरी में जो पोस्ट ह्यूमनिज्म है, उसमें भी ह्यूमन स्पीशीज़ की बात की जाती है कि हम सारी चीज़ों को तो टेक्नोलॉजिकली वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हम यही देखते हैं कि इसका रोबोट्स हो, मशीन्स हो, इसका इंसानी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, इसका क्या इन्फ्लुएंस है। सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी को हम सर्वाइव करने की बात कर रहे हैं। तो ये 20th सेंचुरी के अंदर भी आइडियाज़ बड़े प्रोमिनेंट हैं जो ह्यूमनिज़्म के लिए नज़र आते हैं। तो मेटाफिजिकल डिबेट ह्यूमनिज़्म में नेचर को लेकर है कि इंसान की नेचर क्या है, इंसान लॉजिक को यूज़ करता है या वो एक सुपर नेचुरल चीज़ों पर बिलीव करे। एजुकेशन के अंदर ह्यूमनिज़्म का रोल इस तरह से है कि ह्यूमन इंटेलेक्ट को अहमियत दी गई है और इंसान ने पहले से ज़्यादा सब्जेक्ट और फील्ड जो है वो डिवाइड किए। और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटी ज़्यादा प्रमोट हुई ताकि इंसान के को इंटेलेक्चुअली इम्प्रूव किया जाए, ग्रो किया जाए और अपनी ज़िंदगी के मामलात को ऐसा इल्म हासिल किया जाए जिसका डायरेक्टली आपकी ज़िंदगी से पे गहरा असर पड़े। और अच्छा, अब इसके बहुत सारे हमें क्रिटिसाइज भी नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे कि सेकुलरिज्म वाला पॉइंट है, रिलीजियस लोग इसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि ह्यूमनिज्म जो है वो कम्प्लीटली जो है वो सेपरेट करता है, लेकिन रिलीजियस सुपरस्टिशियस वैल्यू भी है। तो वो सपोर्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ रैशनल आर्गुमेंट में, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट अ रैशनल, माइंड इज नॉट अलोन द रीजन टू जस्टिफाई द ह्यूमन की स्पिरिचुअल भी है, सोल भी है। तो ये क्रिटिज्म हमें नज़र आता है ह्यूमनिज्म के अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज। मैंने आपको बताया ह्यूमनिज्म का असर एपिस्टेमोलॉजी पे क्या पड़ता है कि नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज की बात होती है, एम्पिरिकल एविडेंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं। एथिक्स पे अगर हम बात करें तो इसमें अखलाकियात इंसान को पैमाना बनाते हुए कि इंसान की डिग्निटी को देखते हुए देखा जाए कि ह्यूमन को वैल्यू दी जाए और ह्यूमन इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, तो हर वो एक्ट एथिकल कंसिडर किया जाएगा। और पॉलिटिकल की बात करें तो इंसान को, हर एक शख्स को आज़ादी होनी चाहिए। जो ह्यूमन राइट्स हैं, यूडीएचआर की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वो इस आइडिया को प्रमोट करते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम हो। ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, उसमें चाहे वो रिलीजियस टॉलरेंस हो, एवरीवन हैज़ अ राइट टू टेक एंड चूज वट एवर द रिलीजन यू वांट टू बी। तो ये टॉलरेंस होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए और हर एक जो है वो उसको समझे। और ये जो अथॉरिटी है, बिलीव जो बताते हैं कि ये आपको ये बनना है, आपको ये करना है, उसको रिजेक्ट करें। तो ये रिलीजियस और पॉलिटिकल एक इंडिविजुअल फ्रीडम की तरफ बात जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी के खुद जिम्मेदार हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कम्युनिटीज। तो इस तरह से आज हम देखते हैं इतने सारे ह्यूमन राइट्स हमें नज़र आते हैं, राइट टू लिव, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये सब इटालियन रेनेसां की बिगिनिंग आप देखते हैं 13th सेंचुरी से लेके, और आज मैंने आपको 21st सेंचुरी तक उसका इन्फ्लुएंस बताया कि जो है वो कहाँ तक रहा है। और आपको फिर आप इसके मायने भी समझ आए कि वी ऑल आर बॉर्न इक्वल, बी द ह्यूमन फर्स्ट एंड द रेस्ट आर सेकेंडरी। और इस तरह से इंडिविजुअलिज्म, सेकुलरिज्म और जो ह्यूमन राइट्स के, ह्यूमनिज्म के ऊपर जो क्रिटिज्म है वो भी क्या है, ये सब हमने देखे। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेल एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।